Good morning, students. Today we will start with the first topic, Kingdom Manira of second chapter. In last lecture, we have done that there are 5 kingdoms according to Whitaker, that is Manira, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. So, coming to Manira, let's revise the main characteristics of Manira. Cell type is prokaryotic. Prokaryotic means the body is made up of single cell. Cell wall is non-cellulosic, means cell wall is not made up of cellulose. The cell, you go in the right hand side, see the plantae have a cellulose. That means the cellulose is the material of cell wall of plant, but not the prokaryotes. So here cell wall is made up of polysaccharides and the amino acids. जो मनीरा की सेल वॉल है वो सेलुलोजिक नहीं होती. सेलुलोजिक जो होती है या सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल किन की होती है? प्लांटी के मेंबर्स की होती हैं. लेकिन जो मनीरा है उनकी सेल वॉल पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड से बनी होती हैं. Then is the mode of nutrition come. There is autotrophic also and the heterotrophic. So किंगडम मनीरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मनीरा. जो बैक्टीरिया है वो मनीरा के अंडर आते हैं. देयर आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, in the air. Right now we are sitting, you holding your cell or on your copy, there are millions of bacteria. They are also present in the hot springs, deserts, even on the snow and the deep sea. So bacteria are present everywhere. So many of them live in or other organisms as a parasites. So according to shape, bacteria are of many types. We will discuss only the prominent shapes. जैसे अगर सर्कुलर है, आई विल शो द फिगर. हाँ, these are the cocci. Left hand side you can see the spherical are the cocci, and these second one is bacilli. Bacilli containing the spore. Bacilli basically rod in shape, and spirilla containing the flagellum. You can see flagellum. This is help in the movement of the bacteria from one place to other place, and this spiral structure made it as a spirilla. And this on the right hand side, extreme right hand side, this is vibrio. Vibrio is the comma shape, you can say. Vibrio is a comma shape of the bacteria. So on the basis of shape, bacteria are of many types. So bacterial structure is very simple, but they are very complex in nature or in behavior. So bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of bacteria are autotrophic. Autotrophic का मतलब क्या होता है? They synthesize their own food from inorganic substance. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. और heterotrophs क्या है? They do not synthesize their own food but depend on other organisms or on dead organic matter for food. और हेटेरोट्रॉप्स है जो अपना खाना नहीं बनाते, वो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वहीं से अपना फूड वो लेते हैं. तो इसके अंदर आते हैं मनीरा में जो बैक्टीरिया है. अब बैक्टीरिया की शेप के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. सबसे पहले बैक्टीरिया उनको हम बोलते हैं आर्ची बैक्टीरिया. आर्ची बैक्टीरिया की जो स्पेशलिटी है कि दे कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम सिचुएशंस या एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने बताया बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑन द स्नो ऑल्सो. दे आर प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग ऑल्सो. दे आर प्रेजेंट एट वेरी हाई pH. They can present at very low pH. They can survive even a very salty area, and according to their characteristics they are named as. जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं हार्श एनवायरनमेंट में, उसको हम बोलते हैं हिलोफाइल्स. और जो हॉट स्प्रिंग में भी अपने आप को सर्वाइव करवा लेते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, और थर्मोफाइल्स भी बोलते हैं. थर्मो एसिडोफाइल्स या थर्मोफाइल्स. और मार्शी एरिया में
जो सरवाइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। सो आर्ची बैक्टीरिया जो है दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, जो इनकी सेल वॉल है वो क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, जो कि इनको सरवाइव करने में हेल्प करती है इन एक्सट्रीम कंडीशंस में। और मोस्ट ऑफ द मेथेनोजेंस जो है दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल ruminant एनिमल्स, फॉर एग्जांपल काउ। सो कमिंग टू द अदर कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, आर्ची बैक्टीरिया, एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया इज द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। There are thousands of different U bacteria और true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall. इनकी जो सेल वॉल होती हैं, सेल के ऊपर वाली जो कवरिंग होती हैं वो क्या होती है, बहुत सख्त होती है। इफ मोटाइल, इनमें फ्लैचलम होता है, मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया, दैट इज़ द फ्लैचलम दैट इज़ हेल्प फॉर द मोटिलिटी। और इन यू बैक्टीरिया में आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी हम क्यों बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को, बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल ए दैट इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इनको हम इसलिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर फूड एट योर ओन, और फोटोसिंथेटिक इसलिए कि इनके अंदर एक ग्रीन कलर की पिगमेंट जैसे प्लांट्स में होती हैं, इनमें भी होती हैं। So you can see in the figure on the right hand side a filamentous blue green algae nostoc, ठीक है। There is a heterocyst, then you can see the mucilaginous sheath around the cells of the nostoc. So photosynthetic autotrophs जो होते हैं, the colonies are generally surrounded by gelatinous sheath, मतलब ये जेली टाइप होती हैं, और दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़। आपने देखा होगा कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है उसमें, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की स्कम, जब हम उसे बोलते हैं काई, ठीक है, वो उसको हम बेसिकली दैट काई इज़ द ग्रीन कलर, काई इज़ नोन एज द ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इन देयर स्पेशलाइज्ड सेल, जो हिट्रोसिस्ट होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, इसको फिक्स करके ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मोस्टली कहाँ पे होते हैं, ये प्लांट्स जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में होते हैं, तो वहाँ से ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट्स को देंगे। तो इनकी एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप अब आपको समझ आ गया होगा। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी for their ATP production. ATP production means energy production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. So they are known as the chemosynthetic autotrophs. And third one is the heterotrophic bacteria. ठीक है, heterotrophic bacteria क्या होते हैं, the most abundant in nature. इनको हम decomposer भी बोलते हैं। सो ये जो ह्यूमन है उनके लिए हेल्पिंग भी हैं। दे हेल्प इन द मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपको पता ही होगा कर्ड को हम मिल्क से कर्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, एंड दैट इज़ ऑल्सो हेल्प, हेटरोट्रॉप्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स और लेग्यूमिनस रूट्स। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग ह्यूमन डिजीज़ भी कॉज करते हैं, क्रॉप फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, एंड कॉलरा जैसे है, दिस इज़ द नेम ऑफ डिजीज़, टाइफाइड, टेटनस, citrus cankers are well known diseases that is caused by different bacteria. Now in the figure you can see in the left hand side there is a dividing bacteria. There is a single bacteria but it is dividing, that is containing the DNA beneath the cell membrane, and on the cell membrane there is a cell wall. एंड जो इसमें जो सेल बन रहा है दैट इज़ रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है या ये डिवाइड कैसे कर रहा है सेल, विद द हेल्प ऑफ फिशन। फिशन आप देखो, इसके एक ही सेल है उसके अंदर क्या है, फिशन होके दो सेल बन रहे हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे आल्सो प्रोड्यूस द स्पोर्स एंड दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बाय अडॉप्टिंग द प्रिमिटिव मोड ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। तो जो एक DNA एक सेल का DNA दूसरे सेल में जाता है तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ पिलस। ये हम जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में करेंगे। एक स्पेशल टाइप ऑफ
बैक्टीरिया जिनको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, माइकोप्लाज्मा वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, उनको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। तो ये स्मॉलेस्ट इन साइज होते हैं और इवन दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये पैथोजेनिक होते हैं, मतलब दे कैन कॉज द डिजीज। सो दिस इज अंडर मनीरा। सो मनीरा में हमने देखा है कि मोस्टली जो बैक्टीरिया है वो किस किंगडम में आते हैं, वो मनीरा में आते हैं। वो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, सिंगल सेल के बने होंगे और डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया के। कौन कौन सी? कोकाई, बेसिलस, स्पिरुलिना एंड विब्रियो। और दीज इनकी टाइप्स भी डिफरेंट है, जैसे आर्ची बैक्टीरिया जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में हमें मिलेंगे, जो या फिर हार्श हैबिटेट रहने की जगह, हार्श मतलब बहुत जहाँ पे कंडीशंस क्या होंगी, बहुत एक्सट्रीम होंगी, तो उनको हम बोलते हैं आर्ची बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हमको ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है? साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होती हैं। इसी तरह कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी मैंने आपको एग्जांपल्स बना दिया। दिस इज dividing bacteria, and mycoplasma is a special type of bacteria that lack the cell wall. This is their speciality. So next is the kingdom Protista. We will do it in detail tomorrow. I hope this is Munira is clear with you. Any doubt, you can send your query on my WhatsApp number. Thank you.